جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل قریشی وائس آف فریڈم نیوز سے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں N119 میں منامہ پہ۔ یہاں پہ N119 میں جیسے کہ ناظرین پہلے بھی میں N119 سے جو کینڈیڈیٹ ہیں میں ان کے بارے میں ان سے پہلے انٹرویوز بھی کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے یہاں پہ N119 میں جو میں سمجھتا ہوں جو میرا ذاتی انالیسز ہے، جو عوامی سروے کے مطابق میرے دیکھنے میں میرے سننے میں جو بات آئی ہے کہ ملک عثمان حمزہ صاحب جو ہیں یہ یہاں سے N119 کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مضبوط امیدوار ہیں۔ کیوں کہ جتنی بھی یوتھ ہے سروے کے مطابق، عوامی سروے کے مطابق بتانا چاہ رہا ہوں N119 میں، وہ یوتھ ساری جو ہے وہ ملک عثمان حمزہ صاحب کو جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ آئیں اور ہم ان کو ووٹ دیں، اور ہمارے علاقے میں جو ہے وہ ایک ینگ جو ایک پارلیمنٹیرین جو ہے منتخب ہو کر آئے، تاکہ یوتھ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ کیوں کہ ناظرین جس ملک کی یوتھ مضبوط ہوگی نا تو وہ ملک بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں ملک عثمان حمزہ صاحب، بڑی ہی شاندار پرسنالٹی کے مالک، اور میں سمجھتا ہوں تمام کینڈیڈیٹ سے اس وقت اسرار الحق بٹ صاحب بھی یہاں سے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے عابد منامہ صاحب بھی امیدوار ہیں۔ تو ٹکٹ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا ویژن، خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ادراک کہاں تک جاتا ہے، وہ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں۔ تو سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ سے بات ہو رہی ہے، چونکہ آپ محنت کر رہے ہیں، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ پورے N119 میں آپ کی ورکنگ جو ہے وہ سب سے متحرک آپ مجھے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ N119 میں جو ہے وہ ایک عوامی پذیرائی رکھنے والے جو آپ کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو سر بتائیے گا اس وقت جو حالات ہیں، پرویز الہی صاحب نے جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس بھی حاصل کر لیا ہے، اور انہوں نے چودھری ہونے کا ثبوت بھی دے دیا ہے کہ انہوں نے ریزائن کرنے میں، انہوں نے اسمبلیاں ریزالو کرنے میں اپنے سائن بھی کر دیے ہیں، گورنر کو پہنچ چکی۔ تو کیا سمجھتے ہیں، بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑوا کے الیکشن کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بولنے کا۔ اچھا، جہاں تک بات رہی ہے یہ اسمبلیوں کی، اور پرویز الہی کی جو ہمارا سی ایم تھا کاف لیگ سے ہمارے ساتھ الائن تھا اور ہے بھی، اور اس نے بڑا اچھا رول پلے کیا، اس نے بڑی وفا کی ہے پارٹی کے ساتھ، اور اس نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ اس میں ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے، ایک سچے بندے کا ساتھ دیا ہے۔ اور جہاں پر تک بات رہی ہے الیکشن کی، الیکشن تو ہم لوگ جب سے یہ رجیم چینج شروع ہوا ہے تب سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں۔ دیکھیں اس سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے، انہوں نے مارچ نکالا تھا کہ جی الیکشن کروائیں، اس میں آپ نے بھی دیکھا کہ جی الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں تب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں۔ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی طرف جا رہے تھے، یہ اسمبلیاں بچانے کی طرف جا رہے تھے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ کریں۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو کہ انلیگل ہو، ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو کہ قانون سے، جسے قانون کی کوئی پذیرائی ہو یا قانون سے کوئی لا قانونیت ہو، جس میں قانون کے اندر رہ کے۔ دیکھیں اس سے پہلے آپ کو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے، خان صاحب کی اسٹرگل کیا ہے، وہ ہر وہ کام کرنا چاہ رہا ہے جو ایک عام آدمی کو ایک سہولیت ملنی چاہیے، جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اس نے کیا کچھ قربان نہیں کیا، سب کچھ قربان کر دیا اس قوم کے لیے۔ اور وہ صرف اور کہ قانون، دیکھیں آپ کی بیسک چیز ہوتی ہے قانون، اگر جہاں پہ قانون ہی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ملک ترقی کرے گا؟ سب سے پہلی آپ کی بنیادی، ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ انصاف ہو، انصاف ہوگا تو آپ کا ملک آگے بڑھتا ہے، سب سے بیسک چیز انصاف ہے۔ تو خان نے، ہمارے قائد نے، عمران خان صاحب نے اس کے لیے کیا اسٹرگل نہیں کی، کہاں تک اسٹرگل نہیں کی، عوام کو ایجوکیٹ کر دیا، عوام کو بتا دیا کہ یہ لوگ کس طرح کے لیڈرشپ کرتے تھے، یہ کیسے مینوپولیٹ کرتے تھے، کیسے یہ ضمیر فروشوں کا جو چھنگا منگا میں ایپیسوڈ شروع کی انہوں نے، جو یہ کلچر ڈیولپ کیا ہر ڈپارٹمنٹ میں اتنا گند مار دیا کہ وہاں پہ آپ نے رشوت کا کلچر آپ نے اپنا لیا۔ تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو بڑی خوشحالی نظر آئے گی؟ تو خان صاحب نے ہر چیز کو، قانون کی پذیرائی کرنے کے لیے، قانون کو بالادستی کے لیے کیا قربان نہیں کیا، اور اس میں وہ ابھی تک اسٹرگل کر رہا ہے۔ کوئی ایسا ایک کام بھی بتا دیں جو خان نے انلیگل کیا ہو،
कोई ऐसा काम नहीं है जो इलीगलिटी में ना हो, कोई ज़बरदस्ती, जिस तरह इन्होंने तो बड़ी बदमाशी करने की कोशिश की ना, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ये करवा दिया वो करवा दिया, असम्बली में भी टेक ओवर कर लिया, ज़बरदस्ती टेक ओवर कर लिया। तो खान साहब ने तो ऐसे कोई काम नहीं किया, कानून के मुताबिक किया जो भी किया। हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। अब इनके चक्के छूट गए हैं कि ये क्या हो गया। राणा सनाउल्लाह वो जिसको तो वो फाज साहब ने कह भी दिया था चुन्नू मुन्नू, वो चुन्नू मुन्नू आए इसलिए काम के लिए कि ज़मीन फरोशी के लिए आए थे कि लोगों को ख़रीदा जाए। और इसके ऊपर भी मैं खान साहब को क्रेडिट देता हूँ कि जो उन्होंने कानून में अमेंडमेंट करवाई, और जिस तरह ये जो लोटे होते थे ये कभी उस तरफ कभी उस तरफ। आप एक जमात से आए हैं, आप अगर चाह समझते हैं कि ये जमात ठीक नहीं, आप डी सीट हो, ये क्या बात है, आप ब्लैकमेल करके दूसरी जमात में चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खान ने की हैं, और उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल है खान की, और उनको क्रेडिट जाता है। और उन्होंने एक कानून के दायरे में रह के अच्छे तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज की हैं। और आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और आप देखना, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, बिलीव करें लोग सिर्फ इसी इंतज़ार में किस दिन इलेक्शन ना हो। और इंशाअल्लाह खान स्वीप करने जा रहा है, इंशाअल्लाह खान कोई भी इलेक्शन हो इमरान खान स्वीप करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और थोड़ा सा ये बताइएगा कि सदर ममलिकत ने जो है वो शहबाज शरीफ को भी जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दिया है। अगर आप समझते हैं कि कौमी असम्बली भी एतमाद का वोट इमरान खान साहब ले लेते हैं कौमी असम्बली से, तो क्या समझते हैं इमरान खान साहब दोबारा पार्लियामेंट में आएंगे या इलेक्शन को ज़्यादा तरजीह देंगे? देखिए खान साहब का तो एक ही विजन है, इस टाइम पे एक ही स्टांस है कि आप इलेक्शन करवाएं। हमारा स्टांस है, हमने जो हमारी दो गवर्नमेंट हैं, दो बड़े सूबों की गवर्नमेंट है, पंजाब की है, केपी के है, हम दोनों डिसॉल्व करने जा रहे हैं। हम तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे 123 MNAs हैं जो इस्तीफे पड़े हुए हैं इनके पास, ये क्यों नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे? आप वो भी एक्सेप्ट करें। देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो कहा तो वो भी कानूनी तरीके से कहा है, उसमें कोई ला कानूनीत नहीं है, वो हमारा हक है। हमने जो भी काम किया है, देखिए खान साहब ने हमें अपनी इंटरनल मीटिंग्स में भी और ओवरऑल भी आवाम के आगे भी यही बात की है कि हमने कानून से बलातर कोई चीज़ नहीं करनी, कानून में रह के करनी है और हिम्मत से करनी है जो भी है वो, लेकिन कानून से बालादस्ती नहीं करनी, ला कानूनीत नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर लास्ट में मुझे बताइएगा कि NA 119 के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर लास्ट में, कि NA 119 में आवाम के लिए आप क्या मैसेज आप आवाम को देना चाह रहे हैं, प्लीज़ वो ज़रूर दीजिए। देखिए मैं इससे पहले तो आपने जो बात किए थे, ये हम तो एक सोशल वर्कर हैं और मैं PTI में तो इसीलिए आया था कि खान साहब का विज़न था और मुझे खान साहब का विज़न पसंद है। और क्योंकि ये वोट जो होता है आपका, पॉलिटिक्स है या वोट है जो भी है, ये एक कुकल बाद में आता है। और मेरा अपना ज़मीर था कि मैं कभी भी इन चोरों लुटेरों डकैतों को कभी भी मैं इनको सपोर्ट नहीं कर सकता, और ना मैं करना चाहता हूँ ना मैं करूँगा। बिल्कुल सही। और इसके ऊपर मैं सिर्फ यही है कि मुझे खान साहब का विज़न पसंद था कि खान साहब एक वाकई एक इस कौम को कौम बनाना चाह रहे हैं, हमें हमारे पाकिस्तान को मोराल अप कर रहे हैं, जो कि साबित भी किया है। हमारे 3 साल का जो टेन्योर रहा है उसमें खान साहब ने साबित किया है। कोविड में जो हालात थे पूरी दुनिया उसमें हिल गई थी, और बाकी बाकायदा यूरोप अमेरिका इन सब ने स्टेटमेंट दी है कि खान साहब की जो पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन वो सबसे बेस्ट है। अच्छा सर, छोटी सी एक लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा कि क्या समझते हैं, यहाँ से इसरारुल हक भट्ट साहब भी उम्मीदवार हैं और आबद और भी मतलब हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि खान साहब आपको टिकट यहाँ से देंगे? देखिए जो टिकट का मामला है ये तो खान साहब के डिसीजन है, और आपने जो 2 नाम लिए हैं इसके अलावा भी हैं कैंडिडेट्स, सिर्फ ये 2 नहीं है। और मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मैं 2013 में भी एप्लीकेंट था, 2018 में भी एप्लीकेंट था, अब भी एप्लीकेंट हूँ। मुझे 2 दफ़ा विक्टिमाइज़ किया गया, तो कोई मसला नहीं, मैं खान साहब के साथ हूँ, मैं टिकट के साथ नहीं हूँ। मेरी टिकट मेरी पॉलिटिक्स नहीं है, टिकट अप्लाई करना और पार्टी को मेरा पता है सारा, और अल्लाह ताला का शुक्र उसमें मैं कामयाब भी हूँ काफ़ी हद तक। और पार्टी ने अगर टिकट मुझे नहीं दी थी तो मुझे पार्टी ने बहुत अच्छे अहदे पे फाइज भी किया था, चेयरमैन एक्साइज एंड टैक्सेशन का अहदा मुझे दिया था। और मैंने उसमें डिलीवर भी किया। ये जो ऑनलाइन आपकी ई ऑक्शन हो रही है और ई ट्रांसफ़र पे हम लोग जो जा रहे हैं, जो रिफॉर्म्स हैं एक्साइज में, जो हम ई पे के थ्रू टोकन टैक्स भी पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने रिफॉर्म्स की हैं। और बहरहाल ये जो टिकट का मामला था इसमें मैं आपको बड़ा क्लियर मैसेज दे देता हूँ, पार्टी की तरफ से जो है क्लियर मैसेज। आपने देखा होगा 2018 में भी बड़ी हमारे पास खेप आई थी लोटों की, जो अभी हमारा एक इधर से भी एक आया था वो भी लोटा हो गया।
नाम तो नहीं मैं लेना चाहता क्योंकि उसका नाम लेना ही मैं समझता हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम है। और भी बड़े लोटे आए पार्टी में, उन्होंने कहा जी नई नई पार्टियाँ हम कर जाएंगे, इस तरह ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें भी पता चल गया ये जो लोटे होते हैं, ये जो ज़मीर फोश है, ये जो इन्होंने जो करना होता है, जिस तरह ब्लैक मेलिंग में आते हैं, अगर इनके मफादात पूरे नहीं होते, जो करप्ट मफादात हैं को जो अपने क्रिमिनल एक्ट की वजह से आ रहे होते हैं कि जी हम किसी न किसी तरीके से या पार्टी मकदार में आएंगे, हम अपने ये केसेस ख़त्म करवाएंगे, वो खान साहब नहीं करेंगे। जब इनको पता चल गया तो ये फिर वापस अपने साथियों के पास चले गए, जो कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा हुआ है। हमारी पार्टी में छंटी हो गई, हमें नहीं पता चल रहा था कि हमारे साथ लोटे कौन कौन से हैं, और इन्होंने खुद ही हमारी पार्टी छंटी कर दी, वो बड़ा अच्छा हुआ। दूसरी बात जो टिकट की मैं बताऊँ ना आपको, देखें इस टाइम खान साहब एक चीज़ के ऊपर कमिटेड है, किसी क्रिमिनल को, किसी लैंड माफिया को, किसी आप समझते हैं वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन को टिकट्स वार्ड नहीं होंगी। खान साहब का इस टाइम पूरी पार्टी के ऊपर मैसेज है, बार हाँ मैसेज है, इंशाअल्लाह ये टिकट जब इस दफ़ा वार्ड होगी, सबसे पहले तो वो यंगस्टर्स को करेंगे प्रमोट, और उसके बाद पार्टी के साथ उसकी लॉयल्टी क्या थी, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उसकी कैपेसिटी क्या थी, ये सारी चीज़ें देख के टिकट वार्ड होती है। और इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टीमें बनी हुई हैं, वो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ लोगों को टास्क दे दिया गया हुआ है कि जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो सर्वेज हो रहे हैं, जो मॉनिटर भी कर रहे हैं, वो सारी टीमें बनी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाअल्लाह ये टिकट्स इस दफ़ा खान ने खुद देनी है, और हर एक का इंटरव्यूज़ होंगे और पता चलेगा हर एक की कैपेसिटी का, वो कौन कौन सी कैपेसिटी है। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें टिकट वार्ड हो गई है, हमने पार्टी ज्वाइन कर ली है, हम ये हैं, हम वो हैं, उन सबको एक मैसेज है कि मैं पब्लिक को भी ये मैसेज देता हूँ कि ये कोई किसी को टिकट वार्ड नहीं हुई, ना किसी को टिकट वार्ड अभी तक ये प्रोसेस में है। हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, वो नाम शॉर्टलिस्ट करता है, फिर उसके बाद टिकट अवार्डेड होंगे। लेकिन जिसको भी वार्ड होगी, मैं इंशाअल्लाह, एक तो मैं खुद कैंडिडेट हूँ, अगर मुझे वार्ड नहीं होती, जिसको भी वार्ड होगी मैं इसी तरह इलेक्शन लड़ूंगा जिस तरह मैं अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर बहुत मेहरबानी मलक साहब। नाज़रीन, ये हमारी यूथ के और पाकिस्तान की इस वक्त जो है मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है बिलोंग करते हैं, और बड़ी ही खूबसूरत बातें की। मैं समझता, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी सियासी शख्स से बात कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे किसी बहुत एहसास वाला। और नाज़रीन, जब तक ये सोच नहीं होगी ना हमारे MNAs की, MPAs की, तो हमारा मुल्क ग्रोथ नहीं कर सकता। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान आदिल कुरैशी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।